We'll separate out. Separate out. Go back. Two in one table. Okay. Good afternoon, ladies. So, last time we started parabola, right? And we covered all the t results of parabola, right? So, and I asked you all to remember those t results. So, how to remember those t results? You have to get up in the morning and do puja and start muggifying it, right? Is it the way? What was the way I told you? You have to derive it on your own, right? So, I will be writing all the left hand side, you have to fill the right hand side, okay? And then that will become your table, and that table would go in front of your own study table. Nobody will look into each other's notebook. We don't have better markers?
Just write in 5 minutes and then submit your paper with writing your name. Is it visible? Okay. All questions are making sense? No question is new, right? Okay. Which one? Chord joining T1 and T2 is a focal chord then. When chord joining T1 and T2 subtends 90° at vertex, then chord joining T1 T2 is a normal at T1 then. अच्छे मार्कर्स मंगा लीजिएगा और डिफरेंट कलर्स के भी. Two more minutes and then you will stop writing, okay? Thank you. Which one? 12 and 12 question deals with T1, T2, T3 are co-normals. If T1, T2, T3 are co-normals, then what happens? And when T1, T2, T3, T4 are concyclic, then
We discussed it, right, last time? Okay. Last 1 minute. स्क्रीन पे विजिबल है? Question number T1, T2, T3 are conormals then. If T1, T2, T3 are conormals then. And 13 is if T1, T2, T3, T4 are concyclic then. Okay, time up. Exchange. Exchange the, put your name first. Put your name and exchange with your partners. Put your name and exchange with your partner. Okay. Exchange. 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 Now you exchange. Okay, already exchange. Good. Now you just have to take, there are basically 15 questions, right? 12 and then 13, 14, 15, right? +1, wrong, -1, and no attempt, 0. Okay? क्या है mark distribution? Correct answer +1, wrong answer -1, and no attempt is 0. Okay, parametric form बताओ जल्दी. What is parametric form? AT square comma 2AT, right? सबको चेक करना आता है, सीधे क्रॉस करना है, अपना नहीं देखना है, पार्टनर का देखना है जो कॉपी चेक कर रहे हो. फर्स्ट आंसर इज AT square comma 2AT. What is the equation of tangent at T? Ty is equal to x plus AT square is the right answer. Ty is equal to x plus AT square. What is the equation of normal? Excellent. Slope of chord joining T1 and T2? What is the relation? Huh? What is the slope of chord joining T1 and T2? 2 upon T1 plus T2. It means no one answered it right. 2 upon T1 plus T2. ठीक है? Point of intersection of tangents at T1 and T2. No one corrected it right. The answer is A T1 T2 comma A into T1 plus T2. And what is the point of intersection of normal? A into T1 square, T2 square, T1 T2 plus 2 comma minus A T1 T2. यही था? Minus A T1 T2 into T1 plus T2. Right? Length of focal radius is going to be? Wrong answer. Length of focal is A plus
उल्टा बोल रही हो. This is a plus at square. This is the length of focal radius, because focal radius is equivalent to direct radius, and direct radius is a plus at square. Okay, and length of focal chord would be T1 plus 1 upon T1 का whole square. T1 plus 1 upon whole square. Okay. What was the next question? Slope of 2t upon t square minus 1. And I'm writing it with a T1 thing, right? Now, 10th first part. Chord joining T1 and T2 is a focal chord. T1 into T2 is equal to minus 1. And when they are subtending 90 degree, T1 into T2 is equal to minus 4. And when the normal is at 90, normal is at T1 and teaching is T2 is equal to minus T1 minus 2 by T1, right? कितने सही हुए सबके अभी तक? 7 correct and wrong? Good. Now, normals at T1 and T2 meeting the parabola. T1 into T2 is equal to 2. T1 into T2 is equal to 2. And T1, T2, T3 are co-normals, means T1 plus T2 plus T3 is equal to 0. And concyclic means T1 plus T2 plus T3 plus T4 is equal to, इसे भूल गए थे? पढ़ोगे नहीं तो हाँ, वेरी गुड, मतलब याद नहीं किया था ना, डिराइव कर रही थी. ठीक है, अंडरस्टूड? ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर ओन लेक्चर. लास्ट लेक्चर इज रिवाइज थ्रू दिस क्विज. ओके, सो नेक्स्ट टाइम, अगली बार से आपको एक शीट मिलेगा. वी वोंट वेस्ट टाइम गिविंग द क्वेश्चन. You will be given one sheet, write the answer and the sheet will be submitted back. सबका स्कोर पता चल गया? सब स्कोर करके जमा कर दो, आप ले लीजिएगा सबके और ऑफिशियल रिकॉर्ड में डाल दीजिएगा. सबने स्कोर कर दिया? स्कोर करके आप जमा कर दो. या 15. मैक्सिमम मार्क वुड बी plus 15 and minimum mark would be minus 15. Okay. What's the score? What's the score? Give the score. You don't know how to count. Mahima. Very good. अरे तुम दोनों के सेम स्कोर कैसे हैं? तुम्हारे भी सेम स्कोर है? मेघा equally negative. Cha, you are greater, but it's still in negative. Oh, better, coming in 0. So see the performance. No one is able to score positive marks. Okay, this Neha has got better mark, and Dipti, poor performance, very poor. इसको जमा कर दीजिएगा, बच्चे पढ़ नहीं रहे घर पे. Okay, now, can this quiz be easier than anything? इससे easier क्या होगा? It was easier, direct result. This is called a general equation of any 2-degree curve. When I say 2-degree curve, what all am I talking about?
When I say the curve is a 2-degree curve, when I say the curve is a 2-degree curve, which all geometrical figures am I talking about? It could be pair of straight line, it could be circle, it could be parabola, it could be ellipse, it could be hyperbola, right? So this story is a general expression of all the 2-degree curve, right? Or wrong? Right. There is a determinant called, I'll be symbolizing with delta, which is equivalent to that of AHG HBF GFC. This is the structure which you need to ratify. And how do you ratify this? No. इसको क्या practice करना है? इसको तो रट्टा ही मारना पड़ेगा. No. I will give you something to remember a sentence. Though my class, when I was preparing for ATJ, I got a better full form of it. जैसे हम लोग बचपन में वो याद करते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, 9 planets के नाम. तो my very educated mother just serve us 9 pickle. Then we, whatever, there could be mnemonics. We call it mnemonics. So you can, let's create one for you guys. All honest girls have best friend, good for class. ऐसे याद कर लो, ठीक है? All honest girls have best friend, good for class. ऐसे याद कर लो, because you are taking A from here, H from here, G from here, HB. But whatever, you can create your own thing. There is no rule for it, but you need to remember this structure. Okay. Now, how many of you know how to find the determinant? किसी को नहीं पता है? कि पता है? थोड़ा बहुत फेंट आइडिया कि कैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं. ये स्ट्रक्चर देखा है ना? देख कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो. देखो, चूज एनी रो और एनी कॉलम. ठीक है, देखो हर एक बदले का, दिस इज फर्स्ट, सो स्टार्ट विथ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, राइट. सबके ऊपर मैंने प्लस माइनस रखा है उसके पोजीशन के हिसाब से. ठीक है, नाउ चूज एनी रो और कॉलम. चूज एनी रो और कॉलम. तो लेट्स से वी हैव चोजन फर्स्ट रो, देन रिमूव दिस होल साइन आउट. ठीक है, जो भी रो सेलेक्ट करेंगे उसको छोड़ के, या जो भी कॉलम सेलेक्ट करेंगे उसको छोड़ के, बाकी सारे के प्लस माइनस को रब आउट. नाउ you have A, you have H, you have G with plus minus, right? So you are going to write plus A bracket, then you are going to write minus H bracket, and then you are going to write plus G bracket. Okay, now what you are going to do, you are going to hide it. You are going to, and now cross multiply BC minus now you are going to hide the row containing H and HC minus, and then you are going to calculate, very good, HF minus or BG, whatever you want to say. Okay, इसको डिटर्मिनेंट वैल्यू कहते हैं. ये निकाल लो, राइट. ये निकालते ही क्या होगा वो बताता हूं. सेटअप कर दो डेल्टा को. सबने नोट कर लिया? ओके, सो AHG HBF GFC. ओके, नाउ सबसे पहले स्टार्ट करो. इफ
determinant turns out to be, क्या determinant पता चला कि it's a 0 and h square is greater than AB. डेल्टा 0 आ गया और h square क्या हो गया, greater than AB. Then this 2-degree curve represent pair of straight line. Okay, that is 0 and h square is greater than or equal to AB. Then which this 2-degree curve represent pair of, we'll understand this when we'll be covering pair of straight line, don't worry. Okay, 2, when this 2-degree curve will become circle, simple, h is equal to 0, you don't want a xy term, a is equal to, right, and g square plus f square minus c has to be positive, जो आप सर्कल बताते थे, right? So this used to be this, when this curve represent circle. When det is not equal to and h square is equal to AB, then this 2-degree curve represent parabola. Then this will represent, fourth would represent hyperbola. See, when det is not equal to 0, you know, you have a strong clarity that h square AB जब होगा तो it is definitely a, तो मतलब det not 0 आया तो मतलब तुम कहाँ हो, या तो पैराबोला पे हो या एलिप्स पे हो या हाइपरबोला पे हो, राइट, इट्स वेरी क्लियर. सर्कल अपना अलग स्टैंड करता है एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में डेल्टा इज इक्वल टू 0 एंड एच स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू ए बी, देन इट इज अ पेयर ऑफ, एंड व्हेन एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी तो क्या होगा, it would be pair of imaginary lines which is not there, right? Okay, so you have to remember this table. Why this table will work, you will gradually understand. Why parabola is this way, you will gradually understand. I couldn't take the concept of diameter last time, so when we will take the concept of diameter, then you will realize why h square is going to be AB. Okay, so should I rub it all? Okay, सबने note कर लिया? Easy to remember, not difficult, and you can remember that determinant. That determinant is something which you need to mark. Now, since we know that when h square is equal to AB, then it is going to represent parabola. It could be pair of straight line also, depending on det kya hai, right? Okay. So for parabola, h square is AB. So h is root AB. So I can write this equation as true or false? True. I can write ax square as root ax का whole square plus 2 into root
एक्स इंटू रूट बी वाई प्लस रूट बी वाई का होल स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू, right? Is it a perfect square? Is it a perfect square? Yes, it is, right? So I can write this as root a x plus root b a whole square is equal to minus 2gx minus 2fy plus c. This is a very important result. What do you see on the left hand side? A square of linear equation or linear expression in xy, and on the right side what do you say? Linear expression. So what does this linear expression represent? A line. This is representing nothing but, and this is representing nothing but line. So can I say line 1 square is equal to line 2? Line 1 square is equal to, so for parabola, whenever you are successfully able to write line 1 square is equal to line 2, whenever you are able to write line 1 square is equal to line 2, what is it? It's a parabola. Clear? देखो अब line 1 square is equal to line 2 में भी दो केस बन रहा है, या तो line 2 is not equal to line 1, then it is a parabola, right? When they are not equal, it is, and when line 2 and line 1 दोनों अगर equal हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? If I give you something like x minus y का whole square is equal to x minus y, तो आप इधर ले जाओगे तो क्या बनेगा? x minus y का whole square minus x minus y is equal to 0. You can take x minus y common, so x minus y into x minus y minus 1, ये क्या बन गया? Pair of, what is pair of straight line? Line 1 into line 2, no, it has become pair of straight line when line 1 and line 2 they are equal. Understood? So when line 2 is not equal to line 1 क्या बन रहा है? और जब line क्या बनेगा? इस सिनारियो में डेट जीरो होने वाला है, इस सिनारियो में डेट जीरो होने वाला है. समझ में आ रहा है? क्योंकि डेट के, क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी एक कंडीशन है एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, और पैराबोला में भी एक कंडीशन है एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी. तो पैराबोला और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का बाउंड्री कहां पे मर्ज आउट कर रहा है? डेट पे. और डेट की कंडीशन कब होगी? जब लाइन टू लाइन 1 बराबर हो जाएगा. सो लाइन 1 स्क्वायर इज इक्वल टू लाइन 2 इज अ स्टोरी ऑफ पैराबोला when line 1 and line 2 they are not same, and when line 1 and line 2 they are same, it is a story of pair of straight line. Good. समझ में आई ये बात? Okay. Now my question is, आपको मैंने हमेशा रिजल्ट, सारे रिजल्ट किस पे रटवाए हैं? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, है ना? रटने का मतलब प्रैक्टिस ही है हमारे लिए, ठीक है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पे हमने सारे रिजल्ट रटे हैं, ठीक है? What was t? पैरामीटर t क्या था? Cot of the angle made by tangent and the axis of parabola. तो अब पैराबोला को तुम कहीं भी ले जाओगी, cot थीटा तो चेंज नहीं करेगा किसी भी पॉइंट का. इसका मतलब t वैल्यू चेंज करेगा कभी? t वैल्यू, तो हमारा t रिजल्ट सारे पैराबोला के लिए सेम होगा. लेकिन अब क्वेश्चन है कि सर दुनिया की सारी पैराबोला को y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x कैसे लिखे? दुनिया की सारे पैराबोला को y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x कैसे लिखे? आपने ऑलरेडी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, आप y क्या है? y इज अ नथिंग बट x एक्सिस, उसका स्क्वायर कर रहे हो, लाइन ही होता है ना y. लाइन स्क्वायर इज इक्वल टू लाइन 2, इधर भी तो वही है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, लाइन 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा ठीक है. तो अब हमारा पर्पस क्या है कि दुनिया के सारे पैराबोला को y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पे सुपर इंपोज करना. लाइन को तो हम कहीं से कहीं पे उठा के ले आ रहे थे, सर्कल को भी हम शिफ्ट आराम से कर ले रहे थे, लेकिन व्हेन वी हैव टू शिफ्ट पैराबोला वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद सम प्रॉब्लम्स, राइट? तो उस चीजों को हम देखेंगे कैसे सुपर इंपोज करना है. क्लियर? शुड आई रब इट ऑफ?
जैसे जस्ट फॉर स्टार्टअप, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, फाइंड फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, length of latus rectum, equation of latus rectum, foot of directrix of, पहला है y square is equal to 8x, दूसरा है y minus 3 is equal to 4 into x minus 2, तीसरा है y plus 3 का whole square is equal to minus 4 into x minus 2, चौथा है x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8 इंटू वाई माइनस 1, और पांचवा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रूट 2 इंटू, ठीक है। आई हैव आस्क्ड यू टू फाइंड व्हाट ऑल, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम एंड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, सबसे पहले बताओ, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इट्स ए स्टैंडर्ड पैराबोला। इसके सारे आंसर्स पता है? फोकस बताओ क्या होगा इसका y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का फोकस क्या होगा? a, ओके। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या, सॉरी, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? x प्लस a इज इक्वल टू, वर्टेक्स क्या होगा? 0, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा? 4a। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम रिवाइज नहीं कर रहे हो तुम लोग। x इक्वल टू a एंड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया सिंस तुम्हारे मुंह से बुलेट की तरह नहीं निकल रहा था, लेकिन आंसर बुलेट की तरह निकलना चाहिए था। जब आपसे पूछा जाए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का, ये पांचों चीज आपके मुंह से बुलेट की तरह निकलना चाहिए, तभी ये आंसर जल्दी निकल पाएगा। इफ यू वांट दिस आंसर टू कम सून, दिस आंसर शुड कम लाइक बुलेट, मतलब समथिंग लाइक योर नेम, है ना। पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, फोकस a, 0, डायरेक्ट्रिक्स x प्लस a इज इक्वल टू 0, वर्टेक्स 0, 0, इस तरीके से निकलना चाहिए। एक्सिस y इज इक्वल टू 0, ऐसे निकलना चाहिए। अगर नहीं निकल रहा है तो प्रॉब्लम है। पैरामेट्रिक फॉर्म at स्क्वायर, 280, t रिजल्ट तो बाद में बुलेट की तरह निकलेगा, पहले ये निकाल लो। ओके, नाउ फर्स्ट, पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या है, क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, सिर्फ a2 बन गया है, a2 बन गया है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? 2, 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 0, 0, 8, x इज इक्वल टू 2, माइनस 2, 0, नो इश्यू, ठीक, नो इश्यू। सो फर्स्ट आंसर केम लाइक बुलेट। सेकेंड क्वेश्चन, इसका आंसर कैसे निकालेंगे? मैं y माइनस 3 को कैपिटल Y लिखूंगा। क्या लिखूंगा? y माइनस 3 को मैंने क्या लिखा? यहां पे स्क्वायर था ना, ऑब्वियसली स्क्वायर होगा ना, तभी तो पैराबोला बनेगा, है ना। मिस हो गया होगा, मिस नहीं होता है क्या इंसानों से? होता है ना। तो क्या हो गया? y माइनस 3 का, तुम्हें बोला क्यों नहीं कि सर वो पैराबोला नहीं है? अच्छा, तुम लोग सोच रहे थे, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि लाइन बन गया वो? अभी स्ट्रेट लाइन खत्म नहीं हुआ क्या अभी तक? हो गया, तो फिर ये समझ में नहीं आ रहा था ये स्ट्रेट लाइन है। ओके, सो y माइनस 3 का होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? कैपिटल Y का होल स्क्वायर। x माइनस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? ठीक, इसका आंसर नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस का आंसर, इसका आंसर क्या क्या होगा बताओ?
फोकस होगा x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, पहला x इज इक्वल टू 1, ओके। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? x प्लस 1 इज इक्वल टू, देखो सबका आंसर मैं कैपिटल X और कैपिटल Y में लिख रहा हूं क्योंकि हमें आंसर स्मॉल x और स्मॉल y में निकालना है। वर्टेक्स क्या होगा? कैपिटल X इज इक्वल टू 0 एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा? 4, नो चेंज, राइट। एंड व्हाट एल्स? इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, कैपिटल X इक्वल टू 1 एंड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैपिटल X is equal to and capital Y is equal to 0. But this is not the answer the examiner is expecting. What he is expecting? The answer in small x and small y. Now start replacing capital X by y minus nahi, capital X by and capital Y by अब बताओ क्या होगा आंसर? 3,3, एक्सेलेंट आंसर। x minus 1, x minus 1 is equal to 0. This is equation, so you have to represent it as a equation. X minus 1 is equal to, this would be 2,3, 4 will remain unaltered. It's a equation. X is equal to 3, x is equal to, and then 1, 1,3। समझ में आ रहा है? ये दैट इज वाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ऐसे ऐसे करके सोचने की जरूरत नहीं है कि y उधर चला गया, x उधर चला गया। मुझे दुनिया की सारी चीजों को खींच के कहां पे लाना है? इंस्टेड ऑफ गोइंग टू एनीवेयर आई विल ब्रिंग इट एवरीवन टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है? रब कर दो ये। Now come to third part. Now look at third part. बताओ जल्दी से। इस y प्लस 3 को मैं क्या लिख रहा हूं? इसमें बताओ, दिस इज ट्रिकियर। -4 इंटू कैपिटल X या 4 इंटू कैपिटल X? 4 इंटू कैपिटल X, माइनस को अंदर पुश करो, क्या बन गया? 2 minus, and now write 4 capital. What is capital Y? Y plus 3. And what is capital X? 2 minus X. 2 minus X. Understood? 2 minus X. ठीक, अब बताओ, अब इसका सबका आंसर जल्दी जल्दी बताओ। फोकस क्या होगा? कैपिटल X इज इक्वल टू 1, कैपिटल Y इज इक्वल टू, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? कैपिटल X वर्टेक्स, कैपिटल X is equal to 0, कैपिटल Y is equal to 4, no change, right? Equation of lattice sectum, capital X is equal to 1 and foot of directrix, right? Now we don't have to leave my answer in this way, we have to get my answer in our original xy. Capital X should be replaced by 2 minus x and capital Y should be replaced by y plus 3 या minus 3? Plus 3. Sorry, 2 कैपिटल X था ना,
2 minus x is equal to 1, and capital X to be replaced by, and y to be replaced by y plus 3. Now tell me the answer. 1 comma, excellent, x is equal to 3, 2 comma minus 3, 2 comma 4 will remain, x equal to 1, 3 comma minus 3. Excellent answer. You are getting fast, you guys. Good. समझ में आ रहा है? Okay, let's try the fourth one. Let's try the fourth one. Now, किसको कैपिटल Y बनाए? Excellent. Capital Y would be, so y square. अच्छा, माइनस को अंदर ले जाओ क्या? ओके, ले गया. 8x, नहीं 2 बाहर रहेगा. कांस्टेंट, अब जो भी कांस्टेंट है वो बाहर रहेगा. y square is equal to 4ax. a is taking care of all the constant. ओके, सो ओनली आपको इसको पॉजिटिव रखना है और कुछ नहीं करना है. ठीक. नाउ टेल मी, आपका कैपिटल Y इज x minus 4. You have to be careful here. Capital Y is, and capital X is 1 minus y और minus y plus 1. ठीक है. अब इसका आंसर आपको रट चुका है. फोकस होगा, कैपिटल X is equal to 2, डायरेक्ट्रिक्स कैपिटल X, वर्टेक्स कैपिटल X, then length of lattice rectum simple 8, no change. Equation of lattice rectum, capital X is equal to 2, and foot of directrix would be 0. हो गया. अब आपको केयरफुल रहना है कि कैपिटल X क्या है. कैपिटल X क्या है आपका? व्हाट इज कैपिटल X? 1 माइनस y, 1 माइनस, और कैपिटल Y क्या है? x माइनस 4 ना. ठीक. कैपिटल X क्या है? माइनस y प्लस 1. कैपिटल X क्या है? 1 माइनस y. कैपिटल Y क्या है? कैपिटल X क्या है? कैपिटल X क्या है? कैपिटल Y क्या है? Okay, so what is going to be your focus? x की वैल्यू क्या है? अब तुम्हारे को आंसर स्मॉल x स्मॉल y में लाना है. स्मॉल x इज x एक्सिस, स्मॉल y इज, so answer would be 4 comma minus 1. Don't get into that कि minus 1 comma 4 would be wrong answer, क्योंकि हमने पूरा कहानी पलट दिया ना, हमने पूरी कहानी पलट दी है. So the focus is going to be 4 comma, समझ में आया? क्योंकि मैं तब, that is why I was writing every time I was writing capital X क्या है, capital Y क्या है, and then I was getting my answer, right? तो यहाँ पे आपको y की वैल्यू आपको पता चली. y मतलब ऑर्डिनेट, x मतलब एब्सिसा. एब्सिसा को पहले इज्जत दी जाती है, ऑर्डिनेट को बाद में. तो क्या हो गया? 4 कॉमा माइनस 1. ये तो सिंपल है, इसके बारे में आपको इंटरप्रिटेशन. y इज इक्वल टू 3, 4 कॉमा 1. एक्सीलेंट. 8 will remain, and this would be y is equal to minus 1. y is equal to, and this would be 4 comma 3. 4 comma, समझ में आया? तो अभी तक सब कुछ अच्छा लग रहा था, यहां से यहां अब प्रॉब्लम है. x प्लस वाई और x माइनस वाई,
बहुत सारे बच्चे टेम्प्ट होंगे क्या करने को कि इसको कैपिटल वाई बना दो, इसको कैपिटल एक्स बना दो, तो सही सोच रहे हैं लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक कर रहे हैं, छोटी सी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कर रहे हैं। देखो यहां पे तुम क्या कर रहे थे, x था, यहां पे y था, ठीक है, तो तुम यहां पे x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता था, यहां पे y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता था, तुम उसको कैपिटल Y और कैपिटल X से सीधे रिप्लेस करते थे, क्योंकि कैपिटल Y और कैपिटल X क्या था, x एक्सिस एंड y एक्सिस। जो पॉइंट होता है, जो पॉइंट होता है वो उसका जो एब्सिसा होता है वो क्या होता है, साइन डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और जो ऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, ठीक है। अगर मैं x प्लस वाई को कैपिटल Y से रिप्लेस कर दूं तो कैपिटल Y और x प्लस वाई का सेम कहानी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अगर गौर से देखो, कैपिटल Y के लिए आप जो पॉइंट लेते हो, इसका जो एब्सिसा होता है, इट हैज सम मीनिंग, इट हैज सम विच इज नथिंग बट डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। अगर मैं इसको x प्लस वाई से रिप्लेस कर रहा हूं, किससे रिप्लेस कर रहा हूं, तो यहां पे जो भी बंदा होगा वो एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे एब्सिसा नहीं देगा, क्योंकि इसको हमने अभी तक नॉर्मलाइज नहीं किया है। आप किसी भी चीज का डिस्टेंस कैसे निकालते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो आप जब x का निकालते थे तो आप सीधे एब्सिसा माइनस कर देते थे, है ना। कि वो क्यों माइनस कर पाते थे, क्योंकि वो ऑलरेडी नॉर्मलाइज होता था, नीचे 1 होता था। लेकिन यहां x प्लस वाई, आप जब डिस्टेंस निकालते हो x प्लस वाई से किसी पॉइंट का, तो आप क्या करते हो, मॉड x1 प्लस y1 अपॉन अंडर रूट लिखते हो, तो वो तो आप एक्चुअल डिस्टेंस निकालते हो। लेकिन आप इसको आप रिप्लेस कर रहे हो किससे, कैपिटल Y से, y एक्सिस से, तो फिर इसको हम क्या करना होगा, नॉर्मलाइज। क्या करना होगा, नॉर्मलाइज। मतलब x प्लस वाई को आप y एक्सिस से रिप्लेस नहीं करते हो, x प्लस वाई बाई रूट 2 को आप कर सकते हो। आप ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 को x एक्सिस से रिप्लेस नहीं कर सकते हो। किसको कर सकते हो, इसको कर सकते हो, डिस्टेंस। क्योंकि x एक्सिस और y एक्सिस क्या होता है, जो भी पॉइंट आप डिफाइन करते हो x एक्सिस y एक्सिस के डिस्टेंस पे डिफाइन करते हो। तो सिमिलरली आप रैंडमली केयरलेसली ax प्लस बी वाई प्लस सी को x एक्सिस या y एक्सिस से रिप्लेस नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना होगा, इवन इनफैक्ट तुम 3x माइनस 2 को भी कैपिटल Y या कैपिटल X से रिप्लेस नहीं कर रहे थे। जैसे आपने बोला था ना कि सर 2 अंदर ले जाओ, मैं तुरंत बोला था ना नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि आप जैसे ले जाओगे आप गलत कर दोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। जैसे x और y अकेला होगा तो नेचुरली वो कोफिशिएंट 1 लेगा, लेकिन जब x और y कॉम्बिनेशन में होगा तो उसको नॉर्मलाइज करना होगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजिंग। तो बिफोर दिस यू वर नॉट केयरिंग अबाउट नॉर्मलाइजेशन। अब आपके लाइफ में एक और पैरामीटर आ गया है कि इट हैज टू बी। सेकेंड थिंग टू नोटिस, आप x एक्सिस और y एक्सिस को 2 लाइन से रिप्लेस कर रहे हो। आप x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में एंगल क्या होता है, तो आपको मेक श्योर करना है कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है कि नहीं है। जैसे अभी तक जितने भी कर रहे थे आप केयरलेसली कर रहे थे, आप ध्यान नहीं दे रहे थे इस बात पे, लेकिन बाय मिस्टेक सही चीज हो रहा था। क्यों? क्योंकि ये दोनों पक्का सब परपेंडिकुलर थे, सब। तो आपको मेक श्योर करना है कि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है कि नहीं है। क्या है, x प्लस वाई और x माइनस वाई एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ x प्लस वाई, हाँ, व्हाट इज द स्लोप ऑफ x प्लस वाई। अरे x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 का स्लोप क्या होता है, -1। एंड व्हाट इज द स्लोप ऑफ x माइनस वाई प्लस 1। -1 इंटू +1 क्या होता है, आर दे परपेंडिकुलर, यस दे आर परपेंडिकुलर। तो एक चीज फिर से यहां पे बच गए, क्योंकि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं दूंगा उसमें आप फंसोगे कि जब परपेंडिकुलर नहीं है तो उसको कैसे परपेंडिकुलर बनाए। अंडरस्टूड। तो यहां तक आप नॉर्मल थे, आप सबको सुपर इंपोज कर रहे थे सिंपली y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पे लेके, और बाय डिफॉल्ट एक भी मिस्टेक इसलिए नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि आप बिना सोचे समझे भी
एक चीज गलत नहीं कर रहे थे, वो क्या कि वाई एक्सिस को आप नॉर्मलाइज बंदे से रिप्लेस कर रहे थे और एक्स एक्सिस को नॉर्मलाइज बंदे से रिप्लेस कर रहे थे, और वो दोनों परपेंडिकुलर भी था, दो यू वर नॉट चेकिंग आउट, राइट। अब जैसे ही लाइन 1 स्क्वायर और लाइन 2 आया है, तो आपको क्या चेक करना पड़ रहा है कि भैया परपेंडिकुलर हो कि नहीं हो। तो दो केस बनेगा, लाइन 1 स्क्वायर इज इक्वल टू लाइन 2 विल ऑलवेज बी पैराबोला, बट देयर वुड बी टू सिनेरियो वेदर दे आर परपेंडिकुलर और नॉट परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर है तो फिर क्या करना होगा, नॉर्मलाइज, और जब परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या करना होगा, बनाना होगा। और परपेंडिकुलर कैसे बनाएंगे वो मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है, अंडरस्टूड। तो आप किसी भी चीज को रैंडमली वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस से रिप्लेस नहीं कर सकते हो। उसको रिप्लेस करने के लिए सबसे पहले आप उसको नॉर्मलाइज करोगे उसको, और मेक श्योर करोगे अगर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस से रिप्लेस करो तो वो दोनों लाइन क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर, तभी तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर इंपोज कर पाओगे। अब इसको, इस दो लाइन को क्या तुम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना सकते हो, नहीं, until unless you make them and normalize them, right? Should I rub it off? ये ध्यान रखना कि हम क्या क्या निकाल रहे हैं, वो सारा निकाल देंगे, इसे मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, x प्लस वाई का x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या था, 4 है, होल स्क्वायर होगा तो वो पैराबोला ही नहीं होगा, ऐसी गलती। ओके, सो हियर वी आर फाइंड दैट लाइन 1 इज परपेंडिकुलर लाइन 2। तो यस, ये दोनों लाइन को मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से रिप्लेस कर सकता हूं बाय डूइंग वन स्मॉल चेंज, एंड दैट इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। सो नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, x प्लस वाई के नीचे क्या आना चाहिए था, तो x प्लस वाई अपॉन रूट 2, अपने मन से रूट 2 तो नहीं ला सकते यहां पे, तो फिर किससे मल्टीप्लाई करना होगा, इंटू 2, राइट। इसको भी नॉर्मलाइज करना होगा, और फिर ठीक, नाउ फाइनल वुड बी x प्लस वाई अपॉन रूट 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू रूट 2, right? Now I will call this as y square and this as capital X. So the story has turned out to be y square is equal to 4x. Focus is going to be capital X is equal to 1, comma capital Y is equal to 0. Directrix is going to be capital X plus 1, 0. Vertex is going to be capital X is equal to capital Y is equal to 0. देखो तुम रिप्लेस कर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट वाज द फोर्थ पार्ट, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अगर तुम नॉर्मलाइज नहीं करती तो आंसर क्या लिखती बताओ, 4√2। अब आंसर क्या लिखोगी, समझ में आया कितनी बड़ी गलती हो जाती, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा 4, है ना। मैं कुछ नहीं बोलता, आप आंसर भी निकाल जाते सबका, और कुछ कुछ आंसर सही भी हो जाता और कुछ कुछ आंसर गलत भी हो जाता। जहां जहां 0 होता वो तो √2 का मतलब ही नहीं होता है, उससे खत्म हो जाता, तो आपको लगता सब सही है। जब इवन नंबर ऑफ मिस्टेक्स होता है तो आंसर कभी कभी सही हो जाता है, पता है ना। फिजिक्स में 2 बार गलत डायरेक्शन लगा दो तो सही हो जाता है ना, 2, ठीक है। सो इवन मिस्टेक्स समटाइम्स हेल्प यू गेट द आंसर। ओके, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम के बाद क्या निकालना था, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, कैपिटल X इज इक्वल टू, जब हम सुपर इंपोज कर चुके हैं तो 1 2 नहीं होगा, समझ रहे हो, बस लेंथ में 1 2 होगा, बाकी इक्वेशन और वर्टेक्स में भी 0,3 नहीं लिखेंगे,
कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, ऐसा करोगी तब मिस्टेक नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं करोगी तुम बार बार सोचोगे मुझे तो पता है, बाद में गलती होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमेशा ये रूल बना लो। ये क्या था, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। फिर क्या निकालना था, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। कैपिटल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल वाई इज इक्वल टू, देखो मैं जब ये सब चीज जानता हूं तो पेशेंटली कर रहा हूं, तो तुम लोग को भी करना चाहिए ना। ओके, हाँ अब देखो, x कैपिटल X is 1 and capital Y is, what is capital X is equal to 1 and you are going to solve these two equations. You are going to solve, so it will become x minus y is equal to root 2 and x is equal to minus y. So minus y, so x क्या हो गया, 1 by root 2, 1 by, और y क्या हो गया, -1 by, समझ में आया, नहीं समझ में आया, टू एक्स, अरे माइनस वाई को x से रिप्लेस करोगे तो क्या आएगा, प्लस एक्स, x प्लस एक्स क्या होता है, 2x इज इक्वल टू रूट 2, तो x क्या हुआ, रूट 2 बाई रूट 2, क्या कर रही बकवास, और y क्या होगा, माइनस एक्स, सो आंसर वुड बी 1 बाई रूट 2 कॉमा, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ओके, व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन, कैपिटल X प्लस 1, व्हाट इज कैपिटल X, x माइनस वाई प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0, समझ में आया, कैपिटल X को मैंने लिख दिया x माइनस वाई अपॉन रूट 2 कॉमन गया, रूट 2 बाहर गया, x माइनस वाई प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। नाउ कैपिटल X इज इक्वल टू 0 एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू, तो मतलब x माइनस वाई बाई रूट 2 इज इक्वल टू 0 एंड ठीक है, तो मतलब x माइनस वाई इज 0, x माइनस वाई इज 0 एंड इट मीन्स वर्टेक्स चेंज नहीं किया है। अगर तुम गौर से देखोगी, ये तुम्हारा ओरिजिनल पैराबोला था और y इज इक्वल टू एक्स लाइन ये होता है, और ये तो पैराबोला कुछ ऐसा बन गया है। वर्टेक्स तो अभी भी यही है ना, वर्टेक्स अभी भी यही है, तो यही है तो रहने दो। ठीक है, समझ में आया, तो आंसर भी सही आया। ठीक, ओके, नाउ फोर्थ, कोई चेंज नहीं, ओके, कैपिटल X इज इक्वल टू 1, तो इक्वेशन इज x minus y is equal to root 2 and then यहां पे रखो -1, यहां पे रखो 0, सेम कहानी, x minus y is equal to minus root 2 and minus y is equal to x, so x is -1 by root 2 and y is equal to 1 by, क्या हो गया, ठीक है, ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है। Still the most difficult one is not done, and that is when line 1 and line 2 they are not perpendicular. So whenever you are superimposing or reimposing any parabola on y square is equal to 4ax, ठीक है, तो basically when you see, सबसे पहले
reimposing any parabola on, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहली चीज है remember all results of y square is equal to 4x, which is not a difficult task. ठीक है, जो भी रिजल्ट इसका आता है आपको उस पे इंपोजिशन जो आपने किया उस अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब जो पैराबोला होता है वो क्या होता है, लाइन वन स्क्वायर इज इक्वल टू, and definitely line 1 and line 2 they should not be equal or parallel, right? When they become equal or parallel, what does it happen? They become straight line, and when they are like this they are parabola. But still there would be two cases. One case, line 1 is perpendicular to line 2, and the other case is going to be line 1 is not perpendicular to line 2, right? But they must be intersecting, that is why they will be parabola, right? Parallel हो गया तो क्या बन जाएगा वो, pair of straight line. Now when line 1 is perpendicular to line 2, step 1, normalize L1 and L2. You know how to normalize? Divided by under root coefficient square plus coefficient square, coefficient of x plus square plus coefficient of y square. You know how to normalize? Okay. Step 2. So you know how to normalize L1 and L2. Ax, any line would be called normalized when ax plus by plus c is equal to 0 को आप किससे डिवाइड करोगे, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ओके, आपने याद है नॉर्मल फॉर्म निकाला था, वो cos अल्फा cos, वो एक्चुअली यही था. अगर आप अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लिख दोगे, स्ट्रेट लाइन में नहीं किया था ये, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, वही चीज थी. ठीक है, ठीक, उसमें अल्फा उल्फा था जो एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर, वो सबसे हम बच गए, सीधे नंबर में आ गए. ठीक है, सो नॉर्मलाइज L1 एंड नॉर्मलाइज कर दिया डेफिनेटली ना, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा माइनस p से तुम जब भी कोई डिस्टेंस निकालोगे नीचे क्या आएगा, अंडर रूट cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा. व्हाट इज इट, हम भी वही कर रहे हैं ना, नॉर्मलाइज्ड. एंड आगे आगे आता है प्रोसीड एज यू नो. लाइन 1 शुड नॉर्मलाइज लाइन 1, नॉर्मलाइज लाइन 1 को क्या बनाओगे, कैपिटल Y, क्योंकि स्क्वायर चल रहा है उस पे. एंड नॉर्मलाइज्ड लाइन 2 को क्या बनाओगे, क्योंकि तुमने सारे रिजल्ट्स के याद किए हैं. ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना. ठीक, चाहे कोई भी स्क्वायर हो रहा हो उसको कैपिटल Y बनाना है, और जो स्क्वायर नहीं हो रहा उसको कैपिटल X बनाना है, और नॉर्मलाइज रखना है. ठीक है, बाहर कांस्टेंट आप जितना चाहो उतना मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन माइनस नहीं रखना है, बाहर माइनस नहीं रखना है, माइनस को अंदर रखना है. ठीक है, ठीक है, पहला सिनारियो बन चुका है. स्टेप 1, मेक लाइन 1 एंड लाइन 2 perpendicular. Then normalize the perpendicular ones, then and follow. And okay, make line 1 and line 2 perpendicular
and then normalize the perpendicular ones and follow the ways you follow in other cases. So what's the question going on in your head right now? How to make line 1 and line 2 perpendicular. This is the question which is hitting you right now. So let's try with an example. Let's try, where should I find an example? Sure, Abid? I'm giving you one question. What we are finding? Focus, vertex, directrix, latus rectum, equation, length, foot of directrix. अच्छा, पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे निकालते हैं? अगेन आपको स्मॉल x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड स्मॉल y इज इक्वल टू 280. तो कैपिटल X वुड बी 80 स्क्वायर एंड कैपिटल Y वुड बी, and then you can again readjust your, and t results will be follow, because t is nothing but chord made by tangent and the point and the axis, है ना? So t point में कोई चेंज, वर्टेक्स का t क्या होता है? वर्टेक्स का t क्या होता है? What is the value of t at vertex? 0. And what is the value of t at latus rectum, at end points of latus rectum? 1 and -1. तो दुनिया के किसी भी पैराबोला पे वर्टेक्स पे t क्या होगा? ठीक है, लेकिन वो फॉर्म चेंज होता रहेगा. दैट वुड बी a प्लस ए टी स्क्वायर या समथिंग इन, क्योंकि हमारा बेसिक फॉर्म है ए टी स्क्वायर कोमा 280, एंड नाउ यू नो हाउ टू सुपर इम्पोज इट. अच्छा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी तुम अकॉर्डिंगली लिख सकती हो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई पे. जब आप y स्क्वायर इक्वल टू 4x का t पॉइंट के लिए रख सकती हो, तो आप कैपिटल y कैपिटल x से टर्म में टेंजेंट लिख सकती हो, एंड देन अगेन कैपिटल Y और कैपिटल X को रिप्लेस कर सकती हो, एंड देन यू विल गेट योर टेंजेंट्स. ओके, लेट्स राइट द क्वेश्चन. लेट्स से you have x square minus 4xy plus 4y square minus 4x is equal to 0. सबसे पहले हमें तो देखना होगा कि भैया ये पैराबोला भी है कि नहीं है, राइट? कुछ परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है क्या? है ना? इसको क्या लिख सकते हैं? is equal to 4x, right? It is line 1 square is equal to line 2, so definitely it is parabola. Can I replace them by normalizing, or we have to check line 1 and line 2, are they perpendicular? What is line 1 here? 2. And what is line 2? 4x. Are they perpendicular? What is the slope of 4x? x is equal to 0 का स्लोप क्या होता है? x is equal to 0 का स्लोप क्या होता है? अरे x is equal to 1 का स्लोप क्या होता है? y एक्सिस का स्लोप क्या होता है? tan 90? Not defined. Infinity. And what is the slope of this? Half. So definitely they are not at 9. They are not perpendicular. Okay. Now what happens? यार पैराबोला में तो हमेशा परपेंडिकुलर आना चाहिए था. Why it is not coming? तो डेफिनेटली क्या हुआ है यहाँ पे? कुछ टर्म, ये इक्वेशन है ना, कुछ टर्म यहाँ के और कुछ टर्म यहाँ के कट गए हैं. समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? नहीं समझ में आया? कुछ टर्म्स इधर के और इधर के, अगर इधर भी 3x था उधर भी 3x था, तुमने कट्टम कुट्टम कर दिया. उधर भी 5 था उधर भी 5 था, तुमने कट्टम कुट्टम कर दिया, जिसकी वजह से दो डिफरेंट लाइन बन के आ गया. ऑल टुगेदर क्या बन के आ गया? जिसकी वजह से दिख रहा है कि ये परपेंडिकुलर ही नहीं बना हुआ. ठीक, तो उसको फिर से परपेंडिकुलर बनाने के लिए आई एम गोइंग टू राइट x माइनस 2y प्लस c प्लस, that is the constant, right?
स्क्वायर इज इक्वल टू, आई हैव टू सी कि कितना एक्स्ट्रा टर्म्स आ गया है, वो यहां पे लिखना होगा। तुमने जब x माइनस 2y का होल स्क्वायर किया था तो कुछ टर्म्स पहले ही थे। पहले कितने टर्म्स थे? चलो x माइनस 2y का होल स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस, ठीक, इसका फुल फॉर्म निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो चलो अब देखते हैं, माइनस 4xy माइनस, एक मिनट रुको, माइनस 4xy के बाद क्या आया? माइनस 4y प्लस 2c, ठीक। इसमें और इसमें कितना टर्म एक्स्ट्रा आया है? कौन कौन से? सी स्क्वायर माइनस 4y, यहां लाना होगा बैलेंस करने के लिए। तो ये खत्म किया मैंने और इसको यहां लिख दिया, 4x प्लस सी स्क्वायर माइनस 4yc प्लस, हो गया बैलेंस। किसी को कोई आपत्ति नहीं है ना? ठीक, ओके। नाउ दिस इज लाइन 1 स्क्वायर एंड दिस इज line 2, this is line 1 square and this is new line 1 square and the new line 2। now इसमें मैंने कोई खास चेंज किया नहीं है, इसके स्लोप के साथ मैंने प्ले ही नहीं किया, y एक्सिस के साथ मैंने प्ले ही नहीं किया, राइट। y इज इक्वल टू 0 क्या लाइन होता है? एक्सिस ऑफ द पैराबोला। मैंने उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया, मैंने सिर्फ प्लस सी कर दिया, इसके स्लोप के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया, और वो जो ऐसे था उसको मैंने ऐसे उठाने की कोशिश की। देखो ये क्या हो गया, ये तो रह गया x माइनस 2y प्लस सी, और x कोफिशिएंट इसका क्या हो गया? 4 प्लस 2cx, 4 प्लस, और y क्या हो गया? माइनस 4c y माइनस 4c प्लस सी स्क्वायर। अब बताओ क्या करना चाहिए? c तो कांस्टेंट है ना, but I have to make sure that this is perpendicular to, what is the slope of this line? 1 by 2, right, excellent. Then what should be the slope of this line? minus 2। उसका स्लोप अगर 1 by 2 है तो उसका स्लोप क्या होना चाहिए? इसका c के टर्म में स्लोप क्या है? 4 plus 2c upon 4c, this is the slope, this is the slope of line 2, and we want this slope to be equal to minus 2, right or wrong? So 4 is equal to 10c minus 10c minus, so c is equal to minus 0.4 minus, so I am replacing it by x minus 2y minus 0.4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 0.8 कितना होता है? 4 माइनस 2 के c क्या है? 0.4 है, 3.2, 3.2x माइनस ये क्या हो जाएगा? c क्या आया था? 0.4 आया था, 1 point, and this will become 0.16। सी हमने क्या किया था, ऐसे ही रैंडम नंबर लिया था इसलिए गंदा कैलकुलेशन आ रहा है, अदरवाइज नंबर प्यारे से आते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर line 1 is square is equal to line 2. Can I say both are perpendicular? Can I reimpose with y square is equal to 4x, or we have to do the normalization first? We have to first the normalization. इसको किससे डिवाइड करोगी? अंडर रूट 5,
√5 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करोगी 5 से, क्योंकि स्क्वायर है। और इसको किससे डिवाइड करोगी? 3.2 का होल स्क्वायर, और फर्स्ट यू जस्ट रिमूव 3.2 टोटली आउट, 3.2 ठीक, या 1.6 टोटली आउट कर दो, 1.6 टोटली आउट कर दो, तो ये गया 2x, ये हो गया y, और ये हो गया समथिंग। उसको किससे रिप्लेस करोगी? √5, और √5 को किससे मल्टीप्लाई करोगी? √5 से। समझ में आ रहा है? सो यू विल गेट योर, and then you will be able to find all your answers, right? And then your t results would also be valid. Clear or not clear? Clear. This was the most difficult portion of parabola, which you have already covered. समझ में आ रहा है? But you need to practice more and more कि how to handle these type of stuff. Clear? Share a bit of? No? नोट करो। Share a bit of? अच्छा, जब तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करती हो ax² + bx + c = 0, ठीक, और जब d पॉजिटिव होता है, d, तो क्या सिनारी होती है? 2 डिफरेंट रूट्स, हाँ, सो 2 रूट्स होते हैं अल्फा एंड बीटा, मतलब 2 रूट्स बन रहे होते हैं और दोनों दिख रहे होते हैं, दोनों बन रहे होते हैं और दोनों दिख रहे होते हैं। रूट्स कितने बन रहे होते हैं टोटल बताओ? रूट्स अभी भी 2 बन रहे होते हैं, लेकिन दिखते कितने हैं? 1। बन रहे हैं 2 लेकिन दिख रहे हैं 1। बन रहे हैं 2 लेकिन दिख रहे हैं 1। ना बन रहे हैं ना दिख रहे हैं, ठीक। ये है आपका क्यूबिक इक्वेशन, अल्फा बीटा गामा। एक सिनारी होता है 3 डिफरेंट, एक सिनारी होगा अल्फा अल्फा बीटा, एक सिनारियो होगा अल्फा अल्फा अल्फा, और एक होगा अल्फा और 2 बना ही नहीं, एक ही रूट बना, बाकी 2 इमेजिनरी निकल गए। 3 रियल रूट्स, 3 रियल रूट्स, 3 रियल रूट्स, 1 रियल रूट। ऐसा हो सकता है क्या 2 रियल रूट और 1 इमेजिनरी? 2 रियल और 1 इमेजिनरी हो सकता है क्या कभी? क्यों नहीं हो सकता है? क्वाड्रेटिक आएगा, क्वाड्रेटिक में क्या कहते हैं, अगर एक इमेजिनरी बनाए तो दूसरा पक्का उसका कॉन्जुगेट बनेगा, 2 इमेजिनरी और एक, तो ये कंडीशन हो सकता है, एक रियल 2 इमेजिनरी,
एक रियल या दो कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन और कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा कॉन्जुगेट में आते हैं, राइट? तो सिनारियो यही चार होगी, सिनारियो यही चार होगी। इसमें हम कहेंगे तीन फॉर्म्ड, तीन विजिबल, तीन फॉर्म्ड, थ्री विजिबल। इसमें हम कहेंगे थ्री फॉर्म्ड, टू विजिबल। इसमें कहेंगे थ्री फॉर्म्ड, वन विजिबल। इसमें कहेंगे हाउ मेनी फॉर्म्ड, वन फॉर्म्ड, वन विजिबल। ठीक, अब तुम सोच रहे हो कि मैं व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट फॉर्म्ड एंड विजिबल, फॉर्म्ड एंड विजिबल। What is the equation of normal at t? Ty ठीक है, उल्टा तो नहीं लिख दिया? सही है ना? ओके। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? -1/t, सो ये t होगा। उल्टा लिख दिया क्या? अभी चेक कर लेते हैं। y इंटू 280, y प्लस टी एक्स है ना, वही मैं सोच रहा था, y प्लस टी एक्स है ना। इसका स्लोप -t होता है, उसका स्लोप 1/t होता है, वही मैं बोल रहा था। ठीक है, सो यू हैव y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 80 क्यूब प्लस 280। दिस इज योर, क्या होता है, कोई एक पॉइंट होता है, यहां से तीन नॉर्मल बनते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक ही नॉर्मल बन रहा होता है। कभी कभी क्या होता है, इस पॉइंट से एक ही नॉर्मल बन रहा होता है। कभी क्या होता है, किस रीजन से बन रहे होते हैं तीन, दिखते हैं एक। कभी कभी होता है बन रहे होते हैं तीन, दिखते हैं दो। कहीं कहीं पे होता है तीन बनते हैं और तीन दिखते हैं, और कहीं पे होता है तीन बनते हैं एक दिखते हैं, और कहीं पे होता है एक ही बनते हैं और एक ही दिखते हैं। चार जो जोन मैंने डिस्कस किया था। तो आपका जो पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो आपको बताना है कि कौन कौन से रीजन में कितने बन रहे हैं और कितने विजिबल हैं। ठीक है, विल ऑब्जर्व दिस। चलो मान लो तुम पैराबोला के एक्सिस पे कहीं बैठे हो। ठीक, पैराबोला के यहां पे कहते हो h, 0। ठीक है, तुम्हें वो रीजन बताना है इस लाइन पे जहां पे बन तो रहा है तीन, लेकिन दिख रहा है एक। बन रहा है, सबसे पहले बताओ, जब तीन को नॉर्मल किसी पॉइंट से पास करता है तो h, k उसको सेटिस्फाई करेगा। तो h, 0 इसको मैं पुट कर सकता हूं इसमें, तो y क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, th इज इक्वल टू 80 क्यूब प्लस 280। ठीक, विच मीन्स 80 क्यूब इज इक्वल टू t इंटू h माइनस 2a। ठीक, इससे एक तो पता चलता है t इज इक्वल टू 0, और एक पता चलता है t स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस 2a बाई a।
right? Acha, when I say tell me the point where three normals are formed but visible, it means मैं कौन सी कंडीशन की बात कर रहा हूं? अल्फा कॉमा अल्फा कॉमा अल्फा कॉमा अल्फा कॉमा अल्फा, राइट? पहला रूट क्या आया है? आई वॉन्ट रेस्ट ऑफ द रूट्स टू बी जीरो, तो ये जीरो कब होगा? h माइनस टू ए जब जीरो होगा। h माइनस टू ए जीरो कब होगा? 2a होगा। तो जब भी आप 2a कॉमा जीरो से, जब भी आप 2a कॉमा जीरो से नॉर्मल बनाएंगी, कितने नॉर्मल बनेंगे? 3 दिखेंगे कितने? क्योंकि वो तीनों नॉर्मल होंगे, 1 नॉर्मल, 2 नॉर्मल, 3 नॉर्मल। समझ में आ रहा है? 1 नॉर्मल, 2 नॉर्मल, 3 नॉर्मल। सो फर्स्ट कंडीशन आपको पता चल गया कि अगर मैं बोलूं कि फ्रॉम वेयर यू आर एग्जैक्टली व्हेन यू गॉट ओनली, you actually created 3 normals but visible only, so where you are? 2a comma 0. Let's explore the other region. Let's explore the other region. Should I rub it? Y plus tx is equal to atq plus 2at. Now let's say I am trying to find the locus of point such that it is creating 3 normals but visible 2. So सबसे पहले मैं मूविंग पॉइंट को h कॉमा k पे मिल रहे हैं सब, so क्या लिख दिया? k plus ht is equal to atq plus 280, right? What scenario you are looking for? You are forming 3 roots, 2 visible, means you are trying to find t1, t1, t2, right? Scenario is t1, t1, t2. Now tell me, rearranging this equation, I can rearrange it by at cube plus 2a minus h t minus k is equal to 0, right? Right? Okay. Now let's create some known results. t1 plus t1 plus t2 would be equal to when 3 points are co-normal, when the sum is, और यहां पे भी आप देख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इज नॉट देयर, ठीक? नाउ व्हाट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा? सी बाई ए। सो t1 इंटू t1 इज t1 स्क्वायर, t1 इंटू t2, t1 इंटू t2, क्या हो गया ये? c बाई ए। व्हाट इज c? 2a minus h. No, this is c. 2a minus h. This is d. 2a Minus h. h, right? And what by a? Check. Now tell me what is product of root? Minus d by a. Product of root is t1 square t2 is equal to K by a. k by a. ठीक? So you got, can you eliminate t1 t2 here? Easily. You know t2 is nothing but minus 2t1, क्या है? सो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं t1 स्क्वायर, इट विल रिमेन t1 स्क्वायर, t2 विल बी रिप्लेस्ड बाय minus 2t1, that is minus 2t square, that is 4t1 square, right or wrong?
which would be equal to 2a minus, right or wrong? नहीं समझ में आया? 2t1 t2 and t2 is nothing but minus 2t1, so 4t1 square. t1 square minus 4t1 square is minus, so t1 square is h minus 2a by 3a, right or wrong? ठीक क्या, या कुछ गलती हो गई? ठीक है, नो इश्यू. सो t1 स्क्वायर इज दिस, t2 क्या है? माइनस 2t1, सो t1 क्यूब क्या हो गया? माइनस k बाई 2a. ठीक, माइनस k बाई, समझ में आया कि नहीं आया? t1 स्क्वायर इज दिस and t1 cube is, if I make it cube and if I square it, they would be equal. So I can say h minus 2a by 3a का cube is equal to y by 2a का square, sorry k by 2a का square. Now can I replace h by and k by y? So it is going to be x minus 2a का whole cube is equal to 27a, a cube 27 by 4. ठीक है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया क्या? नो ठीक है, 27 by 4 y square. ठीक है, so I can say y square is equal to 4a by 27 x minus 2a का, मतलब when you are on this curve, how many normals are formed? How many visible? 2. When you are at bipolar, 2a, 0 is called bipolar. When you are at 2a, 0, how many normals are formed and how many visible? And when you are in this curve, how many formed? 3. And you are visible? 2. Excellent. Shut a bit off. This is very important result. See, if I am going to draw the graph now. I am going to draw the graph. So this is your parabola. Now आप जब ड्रॉ करते हो okay, this part is 2a comma and this is y square is equal to 4 by 27 x minus 2a का whole cube. I'll tell you why this graph is true and how to create this graph. Now this region, you know, यहाँ पे कितने normals form हो रहे हैं और visible? So this is a zone of 3 1. This is zone of, and इस पे क्या हो रहा है? 3 2 3 2 3 2, right? 3 2 3 2 3 2. ये सारे लाइन पे आप रहोगे तो नॉर्मल्स कितने फॉर्म होंगे? 3 formed, 2 visible. This region, the right of bipolar would be obviously h minus 2a आया था ना, तो 2a से जैसे बढ़ोगे, this region is 3 3 and this region is 1 1. So basically, if you try to remember, you can think of this, let's say तीन फॉर्म करता है और तीनों इसे मिलता है. So let's say it's a very productive country. Let's call it India. Okay,
3 formed, 3 visible. Poor country, Pakistan, 1 formed, 1 visible. Now this is a disputed zone. मेहनत बहुत हो रही है लेकिन प्रोडक्टिविटी, so basically POK, okay, POK 3,1, and this region is the border LOC. Okay, so you can say 3,2, 3,2, 3,2. Then you have got tension यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, 3,1, and then Kashmir, and then okay. So this zone is productive zone. You can say remember it as India 3,3, and you can remember this as Pakistan 1,1, and this zone as, and this is Kashmir. Okay. Okay. Now the question comes. तो आप समझ में आ रहा है कि अगर आपको now tell me इस रीजन में, ओके, इस रीजन में आप आ रहे हो, तो अगर मैं इस कर्व को ऐसे लिखूं y स्क्वायर माइनस 4/27 इंटू एक्स माइनस 2a का होल क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये कर्व है. इस पे जब पुट करते हो 0 आ गया तो मतलब यू आर ईदर ऑन LOC और ऑन काश्मीर. व्हेन this is negative, when this is then you are in India, and when this is positive, when you are in Pakistan. समझ में आ रहा है? Now the my question is कि सर आपको पता कैसे चला कि ये कर्व बनेगा? आपको कैसे पता कैसे चला कि ये कर्व? ये बहुत ही आसान है, देखो कैसे. y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व मुझे बनाना है. बाद में तो वो ट्रांसफॉर्मेशन ही है ना. मुझे ग्राफ देखना है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब का. उससे पहले मैं बनाऊंगा ठीक ठीक. आप बताओ यही कब होता है ना x टू द पावर 3/2 का. आपको मैंने सिखाया था ना किसी भी इसका, तो x टू द पावर 3/2 का कब यही होगा, y स्क्वायर का ही होगा, y का यही होगा. अच्छा y स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, आपने स्क्वायर कर दिया, मतलब जैसा ऊपर है वैसा नीचे भी होगा. आगे आपका. और फिर उसके बाद क्या होता है, x माइनस 2a से आपने खींच लिया इधर की तरफ, और फिर उसके बाद 4/27 से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है. जैसे मैं अगर आपको ये क्वेश्चन दूंगा तो आप आराम से इसको कर लोगे. जैसे मैं आपको ये देखो, मैं एक कर्व दिखाता हूं आपको. शेयर अप इट ऑल. ये समझ में आया ना. दिस रीजन इज 1,1, दैट रीजन इज 3,3, द LOC इज 3,2 एंड बाइपोलर इज 3,1. एंड दोज हु हैवंट अंडरस्टूड कि ये ग्राफ ऐसे कैसे बनेगा, आई विल जस्ट टेल यू द फ्लो. ये ग्राफ कैसे बनेगा, सिंपल है. आप देखोगे इतना आसान था कि मैं भी बना सकती थी, सर को बताने की जरूरत नहीं थी. आपको अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनाने को, फिर उसके बाद मैं बोलूं y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 बनाने को, फिर आपको मैं बोलूं x माइनस 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बनाने को, ठीक है, फिर आपको मैं बोलूं y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3/2 बनाने को, और फिर मैं बोलूं आपको y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब बनाने को, और फिर मैं बोलूं आपको y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब बनाने को. ये 6 ग्राफ मैंने आपको बनाने को दिया. आप बताओ पहला, जल्दी जल्दी बनाते हैं. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एंड देन इफ आई से y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 तो क्या बनेगा, ऊपर भी, और जब मैं बोलूंगा x माइनस 2 इसको शिफ्ट कर दो तो आप इधर ले आओगे, राइट. सिमिलरली व्हेन आई विल आस्क यू टू ड्रॉ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब तो आप ऐसे बना दोगे, और जब आपको मैं बोलूंगा इसका स्क्वायर ले लो नीचे, फिर उसके बाद जब मैं बोलूंगा ये कर लो. समझ में आया. तो इस तरीके से आप बाइपोलर पे यू कैन ड्रॉ द LOC. समझे. इस लाइन का स्पेशल नाम है, दिस इज कॉल्ड बाई कस्पिड. दिस पॉइंट इज कॉल्ड पोलर. व्हाई इट इज कॉल्ड बाई कस्पिड आई विल टेल यू. आप लोगों को क्लास 10th की बायोलॉजी याद होगी तो दिस इज कॉल्ड क्यू कस्पिड. आपका जो हार्ट शेप है
आपने कस्पिड वर्ड यूज सुना होगा जब आप हार्ट चैप्टर पढ़ रही होगी बायोलॉजी में, कस्पिड वर्ड. सो बेसिकली इसका जो शेप होता है, इट हैज डिराइव्ड, ये मैथमेटिकल वर्क से ही आया है. इसका इक्वेशन होता है x to the power 2/3 plus y to the power 2/3 is equal to 1. दिस इज योर क्यू कस्पिड. इट्स अ हायर मैथमेटिक्स. जब आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे देन यू विल रियलाइज दिस कॉल्ड क्यू कस्पिड, and this is from there it has come to be bicuspid. Basically see 4 cuspids here, 1 cuspid, 2 cuspid, 3 cuspid, 4 cuspid. So you call it Q cuspid, and here you call it bicuspid. Okay, understood? We are over time now. Okay then, bye bye. Please revise. Next time we will start ellipse. Okay, you are not improving, your marks was disaster.